last class we were talking, we have I think we had 2 class in last week, and in that we have discussed brief introduction about what is machine learning, what is deep learning, and what is the relationship between artificial intelligence, machine learning, deep learning, and all those stuff which is basically I mean, those were the introductory part which you should know if you're studying for, if you're going in detail, I mean, जो भी हमें actually क्या होता है कि since you have not studied thoroughly machine learning, so हम लोग कुछ ऐसी चीजें हैं, there are very, I mean, there are many topics which are not in your syllabus, but मुझे थोड़ा थोड़ा उसको cover up करना पड़ेगा. So मैंने अभी आप लोगों को अभी तक एक overall brief overview दिया है. आज से हम लोग एक एक टॉपिक लेके और उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो I hope I'm audible and clear. My voice is clear. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. You are audible. Let us start. I'm just switching off my video and starting my presentation. Is my screen visible to you all? The presentation? Yes, ma'am. Okay, so let us start. See, हम online पढ़ रहे हैं, and I mean, few time and few minutes usually are wasted in the joining and rejoining and all those stuff. तो please एक मेरा request है आप लोगों से, तो कि आप लोग क्लास के लिए टाइम पे आएं. मैं यूजुअली 2-3 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ, बट मेक श्योर दैट जैसे ही हमारा जो टाइमिंग है क्लास का, उसके 2-3 मिनट मैक्सिमम एक्सटेंड हो और आप ज्वाइन कर लो. अदरवाइज क्या होता है, जैसे अभी तक बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, एंड आई कीप बिजी इन एडमिटिंग ऑल द स्टूडेंट्स, तो मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ. ठीक है, एंड मैं उसको ओपन नहीं रखूंगी, मैं वेटिंग रूम अनेबल ही रखूंगी, ताकि आप लोग जब भी आओ तो मुझे एटलीस्ट इंफॉर्मेशन रहे दैट कोई भी स्टूडेंट क्लास के बाद, आई मीन क्लास स्टार्ट होने के बाद या इन बिटवीन एंटर कर रहा है या लेफ्ट कर रहा है. ओके, सो प्लीज इंश्योर दैट आप क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आप एंटर कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन है, उसके बाद में एग्जैक्टली 10 बजे या मैक्सिमम 2-3 मिनट में स्टार्ट कर दिया करूंगी. ओके, 10 बजे इन द सेंस द टाइम एट विच आवर क्लास स्टार्ट्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. Of course, we are discussing, I'm going to teach you the subject deep and reinforcement learning. आज मैं आप लोग को स्टार्ट करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. आई हैव टोल्ड यू अ लिटिल बिट अबाउट ANN, बट नाउ आई एम गोइंग टू take this particular topic in detail, and I'm going to explain you each and everything. So this is just a layout that usually represent any artificial neural network. So artificial neural network क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको अब डिटेल में समझेंगे. सबसे पहली चीज तो it is saying that it is a network. So what do you mean by network in general? Network क्या होता है? What do you mean by network? Gurleen Kaur, are you there? Gurleen? Yeah, please unmute yourself and answer my question. Yes, ma'am. Yeah, what is a network? What do you know about network? Connections. Yeah. What is a network? You can answer this question in your own words, own simple words. It is not necessary कि आप
कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन बताओ, इंग्लिश में बताओ, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो. Network is a connection from one point to other. Okay. Anyone else? और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? Connection of nodes. Sorry, your voice is not clear. Connection between multiple nodes to share information data. Could you repeat? Actually मुझे आवाज थोड़ी समझ में नहीं आई. Ma'am, connection between multiple nodes or system to share Okay. data information. Okay. So Interconnection. it's okay. Okay. Ma'am, Basically, a group system is interconnected people or things. okay. See, मुझे थोड़ी सी वॉइस कम समझ में आ रही है जो भी बोल रहा है. I guess मानसी is answering, right? But मुझे वॉइस थोड़ी कम समझ में आ रही थी. Anyways, ठीक है, आप लोगों ने नेटवर्क के बारे में ठीक बोला. बेसिकली क्या है, नेटवर्क का बहुत बेसिक सिंपल मीनिंग है, ये हमें आज तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं. इफ वी आर कनेक्टिंग वेरियस nodes, or you can say if we are connecting various computing systems, then it is known as network. एक नेटवर्क इन जनरल भी हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस इन जनरल वी यूजुअली से अबाउट द पुलिसमैन दैट दे आर हैविंग वेरी गुड नेटवर्क. लाइक क्या उन लोगों का नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि एक कनेक्शन होना और उस कनेक्शन से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना. सो अगर हम हमारे केस में बात करें, सो कंप्यूटर्स के केस में क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम्स अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पॉसिबल होता है, यू नो, मतलब उसके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज नेटवर्क. सो बेसिकली ये बात हुई नेटवर्क की. नाउ न्यूरल नेटवर्क क्यों हमने इसको कहा है? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, इट हैज टेकन सम it is inspired by the neural network which is actually there in the biological neural network which is actually present inside our brain. तो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क एक इस टाइप का नेटवर्क है that connects various nodes. Those are various nodes which are known as biological neuron that are present in our mind, in our brain, and उसका उन बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे ब्रेन में, एंड उन सारे नोड्स को वो सारे नोड्स हाईली डेंसली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एंड डेंसली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. एंड वो जो है उसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, और वो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग का जो आउटपुट होता है, जो हमारे माइंड में जो न्यूरल नेटवर्क है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, उसका जो आउटपुट होता है, उसी आउटपुट के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट करते हैं, या हम लोग का जो भी जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है, या what is this? Mansi Prajapati. I don't understand what message you have written in on the chat box. Okay, so neural network, I was talking about neural network. So neural network जो ब्रेन में होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है या जो इनपुट उसको मिलता है, उसके बाद उस इनपुट के बेसिस, उस इनपुट के ऊपर वो प्रोसेसिंग करता है, एंड उस प्रोसेसिंग का जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्ट करते हैं या एक्शन लेते हैं. ठीक है, और पूरा मतलब इन ऑल जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स या जो भी हम लोग का रिएक्शन होता है, जो भी हम चीज करते हैं, ठीक है, everything comes out as an output of the neural network which is there inside a brain. ठीक है, and now आर्टिफिशियल, हम ऑलरेडी आर्टिफिशियल वर्ड की बात कर चुके हैं. सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, देन क्या हुआ, ये एक ऐसा नेटवर्क है मींस इट इज कनेक्टिंग वेरियस कंप्यूटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटिंग नोड्स, एंड इट इज अ नेटवर्क which is basically inspired from the neural network which is present inside our brain,
and since it is inspired by the neural network, so it is having the same concept, like it is this network will be given some input, and it will perform certain processing, and it will give the output. Okay, this is the thing with neural network. सी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अभी तक बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं. आज लास्ट क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को लेट तक एडमिट कर रही हूँ. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आप लोग 5, जैसे जब भी क्लास स्टार्ट हुई, इफ योर क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10, देन मैक्सिमम 10:05 तक मैं बच्चों को एडमिट करूंगी, इसके बाद मैं इग्नोर कर लूंगी. ओके, सो प्लीज बी ऑन टाइम. ओके, ठीक है. तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू हुआ कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम फर्स्ट मेन इनकी प्रोसेसिंग देखेंगे. आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, बिकॉज जो भी आगे का इसका जो प्रोसेसिंग होता है, इसका जो तरीका होता है, आई मीन प्रोसेस करने का, जो नेट इनपुट वगैरह कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, दिस थिंग इज यूज्ड everywhere. This thing is used in all the networks, you know. Basically ये एक बेसिक है जो सारे डीप न्यूरल नेटवर्क्स में यूज किया जाता है. सारे आगे के CNN, RNN, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो आगे बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होंगी, तो हमें ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी. ओके, सो एम आई ऑडिबल टू यू ऑल, एंड आर यू ऑल विथ मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? ठीक है. Yes, ma'am. Okay, so the next thing, inspirations from nature. Of course हमें मालूम है कि जब इन जनरल लाइफ में हम लोगों ने, या इन द सेंस जो ह्यूमन ने यू नो जो भी चीजें बनाई हैं, जो इन्वेंशंस हुए हैं हमारे यहाँ पर, वो कई बार कहीं ना कहीं नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं. व्हाई? सिंस जैसे कि हम लोग उसकी बात करें, प्लेन की बात करें, तो प्लेन हमने कैसे बनाया? ऑफ कोर्स वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द बर्ड्स. सिंस दे आर एबल टू फ्लाई, देन वी वांट अस टू फ्लाई. तो अब लोग ऐसे तो उड़ नहीं सकते इंडिविजुअली, ठीक है. सो बिकॉज हम लोग के आई मीन जो हमें नेचर से मिला है, वी आर नॉट हैविंग दैट कैपेबिलिटी, तो उसको हम लोगों ने पॉसिबल करने के लिए प्लेन्स बनाए. ठीक है, इस तरीके से जो आई मीन जो हम लोगों ने वेलक्रो बनाया, यू नो, आप लोगों को वेलक्रो सबने देखा होगा, हमारे शू के स्ट्रिप में होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स में हम लोग वेलक्रो यूज करते हैं. सो वेलक्रो जो है वो एक प्लांट था, बर्डॉग. उस प्लांट के अंदर ये वाली क्वालिटी थी, तो उससे इंस्पायर होके हम लोगों ने वेलक्रो बनाया. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों ने नेचर से इंस्पायर होके चीजें करी हैं. इनफैक्ट जो अब जो हम लोग, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना हो अगर एंट ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, आई मीन एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, और बहुत सारे इस टाइप की चीजें जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो इन नेचर से इंस्पायर होके हम लोग करते हैं, है ना. सो अगेन जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, उसका जो इंस्पिरेशन है वो हमें बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से मिला है. ऑल्दो इट इज नॉट एग्जैक्टली द सिमिलर, आई मीन इट इज नॉट एग्जैक्टली द कॉपी, और यू कैन से उससे हमने सिर्फ इंस्पिरेशन लिया है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो हमारे लिए पॉसिबल था, जो हमारे लिए फीजिबल था, जो हमारे लिए प्रैक्टिकली यूजफुल था, हमने उसको उस तरीके से बनाया है. ठीक है. Okay, so inspiration from the brain. I have already told you this thing that जो mind आपका brain है, उसके अंदर जो आपका biological neural network है, that is having highly dense large number of neurons or nodes, and उसके अंदर processing होता है input का, and उसमें जो output आता है accordingly आप action लेते हो, accordingly आप react करते हो, accordingly आप response देते हो. ठीक है, so उसी को use करके हमने ये artificial न्यूरल नेटवर्क बनाया है. ठीक है. नाउ NN are at the very core of deep learning. I have told you earlier as well, deep learning has taken the concept of machine learning. It has extended the concept of machine learning, of giving the data to the system and then make the system observe that data, and on the basis of these observation we are making a model which is performing the task. Okay, so this technique or this concept
इज टेकन फ्रॉम मशीन लर्निंग इन डीप लर्निंग, एंड डीप लर्निंग का जो कोर होता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, बिकॉज इम्प्लीमेंट करने के लिए इस चीज को, इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और यू कैन से द फॉर कन्वर्टिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा into a particular model, for making a model, for building a model on the basis of a particular on the basis of the observation of data, हमने क्या यूज किया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज किया है. सो ANN इज द वेरी कोर ऑफ डीप लर्निंग. हमने डीप लर्निंग के जितने भी न्यूरल NN बनाएंगे, जो हमने DNN बनाने हैं, वो सारे DNN जो है वो ANN के ऊपर बेस्ड है. ऑफ कोर्स उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ANN के ऊपर बेस्ड है, इन यू नो विद जो हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. सो दे आर वर्सेटाइल, पावरफुल, स्केलेबल एंड आइडियल टू टैकल लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग टास्क. ऑफ कोर्स ANN जो है उनमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं. क्यों, क्या होती है सारी क्वालिटी? वर्सेटाइल होते हैं, पावरफुल होते हैं. सी ANN जो है वो बेसिकली हमने बनाया, और जब हम लोगों ने उसको अप्लाई करके देखा कुछ चीज़ों में, कुछ प्रॉब्लम्स में, तो वो हमें उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. ठीक है. सो इसलिए हम लोगों ने ANN को यूज़ किया मशीन लर्निंग के कॉम्बिनेशन में, और उससे हमने डीप लर्निंग बनाया. ठीक है. और ANN की ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वो वर्सेटाइल होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, स्केलेबल होते हैं. सो वर्सेटाइल है मींस हम ANN को मतलब डिफरेंट सिनारियोज में यूज कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन पावरफुल है बिकॉज इट इज हैविंग हम उसमें बहुत आपको क्या समझा, हम उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं. आप उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल जीरो से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. और ऑफ कोर्स इट इज गिविंग, क्योंकि आप उसका आर्किटेक्चर पूरी तरीके से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो आप बहुत बेसिक से लेके बहुत लार्ज न्यूरल नेटवर्क तक बना सकते हो. ठीक है. और उससे इसलिए वो बहुत अपने आप में पावरफुल होता है, बिकॉज एक तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है. और वो अच्छे रिजल्ट्स क्यों देता है? बिकॉज उसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कैपेबिलिटी होती है. ठीक है. और स्केलेबल तो ऑफ कोर्स होते ही है, आप उसको बहुत छोटे लेवल से लेके बड़े लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हो. ठीक है ना. ये तो हमें पता ही है. एंड आइडियल टू टैकल लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग टास्क. ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग डीप लर्निंग. आई थिंक आप लोगों को इतना पता होगा, जैसे मैं आपको एक आध एग्जांपल दूं, जो जो इमेज प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग हम मशीन लर्निंग यूज करके भी कर सकते हैं. ठीक है. बट अगर हम मशीन लर्निंग के कोई एल्गोरिथम को या डीप लर्निंग के किसी एल्गोरिथम को यूज करके किसी इमेज प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम उन दोनों की इफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे या हम उसकी एक्यूरेसी को कंपेयर करेंगे, तो मशीन लर्निंग टास्क में बहुत ज़्यादा एपॉक्स करके, बहुत ज़्यादा एपॉक्स आप थोड़े टाइम में समझने लगोगे. आप ये समझ लो कि ट्रेन हमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए उसको ट्रेन करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, बहुत सोफिस्टिकेशन ऐड करना पड़ता है, तब जाके हम उस एक्यूरेसी को अचीव करते हैं जो डीप न्यूरल नेटवर्क के बहुत आसानी से, बहुत सिंपल से किसी भी डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज करके आप कर सकते हो. ठीक है. तो इसलिए मशीन लर्निंग के जो टास्क हैं, उसके लिए जो कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, उसके लिए जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, या आप बोलो डीप न्यूरल नेटवर्क है, वो उसको यूज करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. ओके. Aman has asked a question. Ma'am, can you explain scalable? Okay. Scalable का मतलब क्या होता है? Scaling. Scaling करना मतलब मैंने आपको पहले भी आई गेस बताया था, फीचर स्केलिंग. तो स्केलिंग का जनरल मीनिंग ये होता है कि आप सेम चीज को बहुत छोटे से उस पे यूज करके बहुत बड़े उसमें भी कर सकते हो. जैसे स्केलिंग का आप ये मतलब समझ सकते हो कि जैसे आपने बोला कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये स्केलेबल है, उसका मीनिंग क्या होगा कि एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है. ठीक है. या आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि हम उसको बहुत छोटा सा एक सिंपल आर्किटेक्चर बना रहे हैं. हमने जस्ट ये एक एग्जांपल जो लिया था ना, यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है. यू कैन सी दैट हियर it is a very simple artificial neural network in which we are having input layers
one hidden layer and output layer. We're having 3 neurons in the input layer, 4 neurons in the hidden layer, and 2 neurons in the output layer. This is a very extremely simple or basic artificial neural network. Okay, so यहाँ पर आप ये देखो कि ये एक बहुत बेसिक, इससे भी और बेसिक बना सकते हैं हम, जिसमें एक ही, अभी मैं आपको एक मैकुलर स्पिट्ज न्यूरॉन बताऊंगी जिसमें सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, उसमें इनपुट दिया जा रहा है और उससे आउटपुट लिया जा रहा है. तो ये एक बहुत बेसिक, बहुत ही छोटा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है. इससे लेकर के आप बहुत लार्ज, बहुत बड़ा, हाईली जिसमें एक्सट्रीम ज्यादा हिडन लेयर्स हों, जैसे 100 हिडन लेयर्स हैं और हर हिडन लेयर के अंदर आप 100 या 1000 न्यूरॉन्स यूज कर रहे हैं, इस टाइप का भी एक आर्किटेक्चर आप बना सकते हैं. सो दैट विल डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन वेयर यू आर गोइंग टू यूज द, वेयर यू आर बेसिकली यूजिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और फॉर विच यू आर मेकिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आप ऐसा समझ सकते हो, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत छोटा सा आर्किटेक्चर बनाएंगे, सिंपल आर्किटेक्चर बनाएंगे दैट इज केपेबल इनफ ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जैसे आप मान लो कि आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, है ना, तो लॉजिक गेट को आप बनाने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज कर सकते हो. तो मान लो मैंने एक एंड गेट को बनाने के लिए ANN को यूज किया, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल सी प्रॉब्लम है. एंड गेट क्या करता है, 2 इनपुट लेता है, अगर उन दोनों के इनपुट में से कोई भी दोनों इनपुट जो है वो 1 होंगे तो आउटपुट में 1 देगा, अदरवाइज एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट में 0 देगा. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है. इसको सॉल्व करने के लिए मैं ANN को यूज कर सकती हूँ, जिसमें मुझे एक सिंपल सा आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर. और ऑन द अदर हैंड मान लो मैं एक इमोशन डिटेक्शन सिस्टम बना रही हूँ, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, जो किसी भी मतलब मैं कैमरा लूंगी और जो भी मेरे पास कैप्चर होगा, जो अगर कोई ह्यूमन बीइंग कैप्चर होता है तो उस ह्यूमन बीइंग के चेहरे को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड देन उसके बाद उसके इमोशंस को डिटेक्ट करेंगे एंड देन I'll say whether that particular person is happy or sad or something like that. So for making this kind of a system which is capable of detecting emotions of a particular person, for making this type of question, we need to make a very very huge and very deep kind of neural network which will be capable of doing this particular thing. तो आप ये देखो कि मैंने एक बहुत बेसिक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंपल आर्किटेक्चर बनाया और एक बहुत हाई, बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई डीप आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बनाया ANN का. इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ANN स्केलेबल है, मतलब बहुत छोटी सी चीज के लिए से लेके बहुत बड़ी चीज तक के लिए वो यूज किया जा सकता है. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. This was about scalability और ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी ANN की, या आप बोलो एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम ANN को यूज करते हैं. और वो बहुत आज का पूरा जो आज के इन द सेंस जो टुडेज वर्ल्ड है उसमें आपको ये देखा होगा कि डीप लर्निंग हर जगह यूज हो रहा है एंड इट इज गिविंग एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स. दैट इज व्हाई इसको एकदम से इतना ज्यादा यूज में आया है ये. सो इसका जो कोर पॉइंट है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है एंड सिंस इट इज केपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग ANN with the help, we are using ANN for implementing this deep learning concept. Okay, so this was a little bit about the advantages of artificial neural network. ठीक है, हम जल्दी से इनके एक कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं ANN के, देन हम लोग उसका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पे जाएंगे. ठीक है, सो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वही जैसे मैंने अभी आप लोगों को कुछ बताया, क्लासिफाइंग बिलियंस ऑफ इमेजेस. गूगल, ऑफ कोर्स गूगल इमेज जो है वो यूज करता है डीप लर्निंग. आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे चेक करते हो और आप उसमें इमेजेस में जाते हो तो गूगल के पास बहुत ह्यूज अमाउंट में इमेजेस है, लेकिन उन इमेजेस में से जो हम लोग सर्च करते हैं उस सर्च के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स में वो इमेजेस भेजता है जो आपके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हो. ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग के लिए वो डीप लर्निंग यूज करता है. Then of course Apple Siri is what Apple Siri बोलो आप, या ये दूसरे भी हैं जो ओके गूगल एंड ऑल दोस थिंग्स, सैमसंग के लिए बिक्सबी है. सो ये जो एक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं इनके लिए भी हमने डीप लर्निंग को यूज किया है, या आर्टिफिशियल, सिंस वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ऑफ कोर्स हम लोग डीप लर्निंग यूज कर रहे हैं. एंड डीप लर्निंग यूज कर रहे हैं तो in turn we are using artificial neural network because ANN is the basis of DL.
ठीक है. So these all are the application of deep learning as well as artificial neural network. Recommending the best videos to watch. Of course हम लोग YouTube यूज करते हैं. इनफैक्ट आप Amazon की बात कर लो, Amazon प्राइम जो है, या आप Netflix की बात कर लो, तो हर जो इस टाइप के जो भी सिस्टम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको रिकमेंडेशन भेजते हैं, वो है ना. और रिकमेंडेशन कैसे भेजते हैं, आपने जो प्रीवियसली वॉच किया है उसके बेसिस पे, एज वेल एज जो आप लोग सर्च कर रहे हो उसके बेसिस पे. ठीक है. सो ये सारी जो चीजें हैं, जो प्रोसेसिंग होती है बैक एंड पे, वो किसके थ्रू होती है, वो डीप लर्निंग के ऊपर होती है, बेस्ड होती है. ठीक है. नेक्स्ट, ओके, गेमिंग में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. गेमिंग में इसका एक एग्जांपल है, लर्निंग टू बीट द वर्ल्ड चैंपियन. एक वर्ल्ड चैंपियन था कौन से गेम में, गेम ऑफ गो. ठीक है. दिस इज अ गेम जिसमें एक वर्ल्ड चैंपियन था, और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जिसमें क्या हुआ था कि एक प्रोग्राम था जिसको बोला था, गूगल का प्रोग्राम था वो, डीप माइंड्स अल्फा गो नाम था उस प्रोग्राम का. एंड उस प्रोग्राम ने क्या किया था, उस पर्टिकुलर गेम में वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट किया था. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट इन द केस ऑफ डीप लर्निंग. सो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का. ठीक है. और ओके, अब हम लोग आ जाएं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हिस्ट्री पे. कि मैं आपको सिर्फ एक आध चीज बताऊंगी, बिकॉज ये जो फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमें पढ़ना है, दैट इज नोन एज मैककुलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन. ठीक है. एंड वो बनाया था किसने, जो वॉरेन मैककुलेट्स एंड वॉल्टर पिट्स, इन दोनों के सरनेम्स पे ही वो जो न्यूरॉन है, या जो फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसका नाम था, जिसको हम मैककुलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है. और ये 1943 में बनाया गया था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क केम इनटू पिक्चर. उसका एक उसका फर्स्ट जो एक इम्प्लीमेंटेशन है, या फर्स्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने यूज करके, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1949 में. ठीक है. उनका एक पेपर था जिसका नाम था लॉजिकल कैलकुलस ऑफ आइडियाज इमिनेंट इन नर्वस एक्टिविटी. तो इसमें इन लोगों ने इसको यूज किया था. ये जस्ट मैंने इंक्लूड किया है सो एज टू गेट यू अ बेसिक आइडिया. ठीक है. और आई डोंट थिंक इसको यूज करना चाहिए. ये मैंने अपने, आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में. ओके. तो ये मैंने अपने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, बिकॉज हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना आप चाहो तो पढ़ सकते हो. बाकी मैंने जितना आपको बताया ना, जो मेन मैककुलेट-स्पिट्ज दोनों साइंटिस्ट थे, उनके नाम, और वो आप इतना पढ़ लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है. और क्यों एन रेलेवेंट है, ये हम ऑलरेडी आपको थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं. एक चीज और मैं बता दूं, ऑफ कोर्स ये मैंने बताया आपको कि रेलेवेंट है. व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स, बिकॉज इट इज हैविंग द प्रॉपर्टीज which we have just now discussed, scalable, versatile and all those things. But एक और बहुत important चीज है, वो ये है कि अब ANN इतना ज्यादा relevant इसलिए भी हो गया because we are having computing power. पहले हमारे पास कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, तो हम लोग उतने बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग ANN अभी यूज करते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते थे. क्यों? बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा, जिसने भी थोड़ा बहुत काम किया है ML पे, या आप लोग गेम अगर खेलते हो, वो करते हो, तो आप लोग अक्सर जब लैपटॉप लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि हमें इसमें ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, या हम इसमें ग्राफिक कार्ड ऐड ऑन कर सकें. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो कंप्यूटिंग पावर है वो हमें हाई चाहिए होती है, सो दैट गेमिंग के उसमें भी रिक्वायर होती है, और एज वेल एज हमारा जो ANN है, या हम बोल रहे हैं डीप लर्निंग है, उसमें भी कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर होता है. क्यों? क्योंकि हमें बहुत लार्ज नेटवर्क्स बनाने होते हैं, और लार्ज नेटवर्क्स बनाने होते हैं उसमें मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे कंप्यूटेशंस होते हैं. तो कंप्यूटेशंस होते हैं तो उसमें बहुत हाई लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बोलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं. और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यूज होती हैं वो फ्लोट होती हैं, तो फ्लोट मल्टीप्लिकेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं. तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है, हमें बेसिकली उसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, कि हमारा जो सिस्टम है दैट शुड बी केपेबल इनफ ऑफ परफॉर्मिंग दीज फ्लोट मल्टीप्लिकेशंस. क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स अपने आप में बहुत ज्यादा
क्या बोलना चाहिए उसको, मेमोरी के रिस्पेक्ट में भी, मेमोरी में तो नहीं, बेसिकली स्पीड हमें बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए होती है कि वो बहुत जल्दी कंप्यूट करके कर पाए, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारे पास सिस्टम्स में पहले नहीं होती थी। सिंस वी आर एबल टू डू दीज थिंग्स नाउअडेज, हमारे पास इस टाइप के सिस्टम्स हैं जिसमें जीपीयू कार्ड्स हम लोग लगाते हैं, और जीपीयू कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई कंप्यूटिंग पावर होती है उसके अंदर, इसलिए हम लोग, इसलिए भी ये भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग एएनएन को इस लेवल पे ला पाए हैं, और एएनएन को हम लोगों ने डीप लर्निंग में इंक्लूड करके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे पास कंप्यूटिंग पावर आई, देन ओनली वी आर इन अ कंडीशन, आई मीन दिस इज also an very important, also a very important reason because of which ANN is getting using उस क्या बोलना चाहिए कि ANN जो है उसकी क्वालिटी तो पहले भी थी, बट उसको, उसका यूसेज इतना ज्यादा फीजिबल या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज अगर हमारे पास ये नहीं होता तो, ठीक है, कंप्यूटिंग पावर नहीं होती तो। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, और this is also a very important reason because of which we are able to use ANN in today's world. ओके, सो ये एक ओवरऑल बात हो गई। ओके, अब हम आ जाएं हमारे फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क पे, जिसको हम बोलते हैं मैकुलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन। मैकुलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन जो है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, इसका नाम क्या है? मैकुलेट्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट, दोनों के सरनेम्स को मिक्स करके नाम बनाया गया है मैकुलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है ये एक बहुत ही एक्सट्रीम बेसिक आर्किटेक्चर है न्यूरल नेटवर्क का, ऑल्दो हम इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, बट ये एक बेसिक बनाता है, ये एक बेसिस देता है हमें, जिसके ऊपर बेस्ड हमने सारे न्यूरल नेटवर्क बनाए गए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स उनकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत एडवांस्ड है जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, पर ये एक बेसिक है उसका, ठीक है। देखो, मैं बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में नहीं जाऊंगी, बट दिस इज द बायोलॉजिकल न्यूरॉन। एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है जिसमें यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, ये ये कनेक्शंस होते हैं, ये सिनेप्स होते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं इनको हम लोगों ने हमारे न्यूरॉन में कन्वर्ट किया है। इसके बेसिस पे ये कहना चाहिए, इससे इंस्पायर होके ये न्यूरॉन बनाया गया है, ठीक है। बट आई एम नॉट गोइंग इन दिस बायोलॉजिकल न्यूरॉन इन डिटेल, मैं आपको सिंपली इसके ऊपर आऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये एनालॉजी आप कहीं पे भी पढ़ोगे आपको मिल जाएगी, और इसके सिलेबस में भी नहीं है, और वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं। अभी आप ये समझ सकते हो, इसकी प्रोसेसिंग समझना इंपॉर्टेंट है। सी, दिस इज अ न्यूरॉन, आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? अभी तक कोई डाउट है किसी को? ओके, तो मैं प्रोसीड करूं। वन मोर थिंग, आफ्टर 2.5 मिनट हमारी मीटिंग बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू रीजॉइन। ओके, मैं जस्ट जैसे ही खत्म होगी ना वैसे ही वापस रीस्टार्ट कर दूंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ ये जो ये वाला जो न्यूरॉन दिख रहा है, ये जो आर्किटेक्चर है बेसिक, इसमें आप देखिए कि सिर्फ एक न्यूरॉन है ना। दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल न्यूरॉन, एंड ये जो V1 से लेके VN तक हैं ये हमारे इनपुट्स हैं। दीज इनपुट्स आर coming towards a neuron with the help of a connections, ठीक है, with the help of these connections, and these connections are having their own weights. This is known as W1. ये W1 से लेके WN तक डिनोट किए गए हैं, आप इसको कुछ भी डिनोट कर सकते हो, बट जनरली वेट्स को हम W से या थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जनरली हम लोग इनपुट को X से डिनोट करते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने V से इसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द इनपुट्स, एंड दीज इनपुट्स आर connected to this particular neuron using these connections, and these connections are having its own weight, and these weights are represented with the help of the denotation W subscript में 1, W, 2, W up to N. Okay, so there are N inputs, and since there are N inputs, we are having N connections, and since we are having N connections, the weights will be N, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर न्यूरॉन पे जब हम आते हैं, तो इस न्यूरॉन पे हम लोग वेट
ये जो भी इनपुट आ रहा है वेट्स के थ्रू, इसको हम लोग यहाँ पर इसका एक इसको इससे एक आउटपुट निकालते हैं, नॉट एग्जैक्टली आउटपुट बट हम इसको आप कह सकते हो समराइज करते हैं. सो समराइज हम इसको कैसे करते हैं? ओके, सो दिस इज गेटिंग, आई मीन मीटिंग खत्म हो रही है, सो मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ. ओके, प्लीज ऑल ऑफ यू ज्वाइन.